Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the reflection of light. तो ये reflection कैसे होता है? What is this phenomena? And ये plane surfaces से कैसे होता है और जो rough surfaces हैं उनसे कैसे होता है? Basically इस phenomena का क्या importance है हमारी life में? Alright, and we will be using the all the terms and all the phenomena, all the process of making image formation by the plane mirror. तो हम लोग आज मेनली डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना को, और वो भी प्लेन मिरर से. ठीक है कि प्लेन मिरर में किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है. मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. Alright, that is so important thing also because you all know this light chapter has its own importance और लगभग ये एवरी क्लास में आता है. ठीक है, सम क्लासेस को छोड़ के. तो आप ये समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. राइट, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दीज एंड यू शुड स्टडी दिस चैप्टर ऑल्सो विद वेरी मच, यू कैन से ग्रेटनेस, डीपनेस. राइट, दैट इज वॉट यू नीड टू डू. You all know that we do provide these lectures for the school examination as well as the Olympiad level. So basically if you want to crack the Olympiads, then you can go for these lectures, and if you really want to crack the school examination, you can definitely go for these lectures. Basically these lectures are for everyone whoever wants to crack these examinations, and we do provide the courses in 6th, 7th and 8th Olympiads along with the NTSC, NSCGS, PRMO and your school examination, that is from 6 to 10. Alright, so that is the important thing. Examinations are really important so that they can get your goals to you, right? तो इससे क्या होगा फ़ायदा एक्चुअली एग्ज़ाम्स को पढ़ के, एग्ज़ाम्स के लिए एक्चुअली पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, वो ये कि इससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा. दैट वुड बी सो मच इम्पॉर्टेंट, राइट. Now you can get that कि if you want DPP and study material, you can access them through our telegram channel. So you can write the code TTB08. तो अगर आप TTB08 को telegram box के search box में लिखेंगे, right, तो then you will be getting the down list of the apps जो भी हैं हमारे channels उस app पर, right. You can get that and then you can join the channel for 8th class. Then definitely you can access all the DPPs available over there. Remember to make sure that you join that channel. It would be so much good. You will be getting the notifications of these videos also, right. Now see, this is the team, this is the awesome team we can say, which is doing very much hard work for you all, and we are making sure that you get the quality lectures so that you can crack all the examinations you wanna aim, right. That is the most important thing in your life also, and for us also. That is our aim, to provide this free you can say free knowledge and free content, right, to you, for that आप पढ़ सकें, right, इससे. and you can definitely do that because these are free for everyone. So basically everybody can take benefit from this. So you should definitely share these video lectures to everyone so that कोई भी बच्चा जो expensive studies को नहीं अब जो है अरेंज कर पाता या फिर नहीं वो किसी तरीके से ले पाता है, then he or she can definitely study from these lectures, and these lectures will be definitely helping them. Alright, so you should definitely share these to your friends and everyone so that they can get benefit from these lectures and crack the examinations they want to crack. Alright, now in accordance to that, we all know that we are providing these lectures free, right, so everybody can see that. But along with that free lectures, we are also making some packages for you all, like the full and the test series package, right. The full package contains all the necessary things you need to crack any examination. For example, a focus study material, right, recorded and live classes, these are free for everyone. Homework submission feature, you will be doing the homework here. Bi-weekly quizzes and periodic test papers. So basically you are going to get these much of things free of cost, definitely. Only the free of cost would be the live classes, right, and the other things you can buy them for the 10,000, right, and you can definitely go for the test series also. So if you are interested in test series, you will be getting the periodic test papers, recorded and live classes, bi-weekly quizzes. You can buy the test series also, and if you want DPP and study material, alright, so that would be included in these things also, right. So basically you need to just buy these packages. If you are really interested in buying them, then you can also use my code CYLive
so that you can get a 30% discount on these packages over here, right? So that would be so cool. So you will be getting a 30% discount, and if you have any query regarding these packages, like how they will be helping you and why you should even buy them, you can definitely call us on the number 919549041111. So you can call us on this number, and then you can definitely get all the queries resolved of yours. That would be a good thing, right? Now see, let's promise ourselves. So basically in this promise section, you are going to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is the most thing you should do, because revision is the key. I am telling you again and again and again, because revision is the most important thing, right? Now let's get started. So today we are going to study about the reflection of light from plane mirror. प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, ये फिनोमेना क्या होता है रिफ्लेक्शन, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन वी आर गेटिंग मोर देन वन इमेजेस, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. And if we talk about the, you can say the learning outcomes, then you can definitely do that, right? You can all see the things, like we will be studying the reflection, all right? We will be studying the terms related to reflection, the laws of reflection, the image formation by plane mirror, right? The characteristics of the image formed by the plane mirror, and we will be also studying the number of images whenever two plane mirrors are capped inclined at each other, right? We will be definitely calculating all the you can say number of images also, right? That would be a most important thing. Now let's get started and let's talk about actually what is this reflection. ऑलराइट, ये रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है. सो बेसिकली ये जस्ट एक बाउंसिंग ऑफ दी होती है, ठीक है. आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग बॉल लेते हैं, ठीक है. सो ये जो बॉल है, ऑलराइट, लेट्स इमेजिन कि तुम क्या कर रहे हो, बॉल को ऐसे ग्राउंड पे टप्पा खिलवा रहे हो, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन ओवर देयर, बॉल जाएगी उस सरफेस से, ज़मीन से टकराएगी एंड इट विल कम बैक टू यू, राइट. तो बॉल ऐसे जाती है, टकराने के बाद वापस आ जाती है, राइट. दिस इज कॉल्ड द बाउंसिंग ऑफ, राइट. तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो बॉल है वो बाउंस ऑफ कर रही है. वेन एवर यू डू दैट, सिमिलर थिंग हैपन्स वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन मिरर टाइप सरफेसेस. मतलब ऐसी बहुत सारी प्लेन सरफेसेस या फिर किसी भी सरफेस पे, ठीक है, जब कभी भी लाइट ऐसे फॉल करती है और वो बिल्कुल बाउंस ऑफ हो जाती है, मतलब वो बिल्कुल बॉल की तरह टप्पा खा के वापस की वापस चली जाती है, राइट. दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ऑलराइट. तो बेसिकली व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, it strikes the surface and it goes back into the same medium, then this phenomena is known as reflection over here, ठीक है. You can see here the phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking the interface of two media is called reflection of light. So basically whenever किसी भी surface पे light bounce off होती है, that means light is coming, striking on that surface and going back into the same medium, this is called the bouncing of the light, ठीक है. तो अगर ये फिनोमेना होता है then it is called the reflection of light, ठीक है. फटाफट से आप इसका डेफिनेशन नोट करो. ऑलराइट, तो अब जो है रिफ्लेक्शन के बाद वी आर गोइंग टू सी द टर्म्स रिलेटेड टू दी रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहला टर्म जो आपको पता चलना चाहिए दैट इज द मिरर इटसेल्फ, ठीक है. बिकॉज देखो, जैसे मैं तुम्हें अभी एग्जांपल बताती हूँ. देखो ये है मिरर, ठीक है, दिस इज द मिरर एंड एज यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस वेस इन द मिरर, है ना. मिरर के अंदर आप इस वेस का इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो नेचुरली, यू कैन सी हियर, ठीक है. तो देखो ये जो माउंटेन्स हैं इनकी जो इमेज है वो आपको इस पानी की सरफेस पे दिखती है, राइट. तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पर एक्चुअली में लाइट इज फॉलिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है. उस सरफेस पे क्या होता है, बाउंसिंग ऑफ कर जाती है एंड व्हेन दैट लाइट बाउंस ऑफ, राइट, इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, तब जाके हमें ये इमेज नजर आती है. ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए यू कैन सी द सरफेस, राइट, यू कैन सी द सरफेस. सो बेसिकली देयर हैज टू बी द सरफेस ऑन विच द लाइट बाउंसेस ऑफ, राइट. वो सरफेस होना चाहिए. और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं. तो जो जनरल टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं ना, अभी ये वाले जो जनरल टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं वो हम किससे रिलेटेड देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी दोज विद द मिरर, ठीक है.
तो सबसे पहला ही टर्म हम लोग क्या ले लेते हैं, मिरर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला टर्म मिरर। तो आप मिरर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, हाउ टू ड्रॉ द मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो मिरर के दो साइड होते हैं, एक तो पेंटेड वाला साइड होता है जहां पर बैक साइड तुम बोल सकते हो जहां पे पेंट किया हुआ होता है, दूसरा सरफेस होता है जहां से लाइट बाउंस होती है, राइट। सो देयर आर टू सरफेसेस ऑफ द मिरर, राइट, जस्ट लाइक कॉइन का दो होते हैं ना सरफेसेस, हेड एंड टेल, लाइक दैट ओनली। तो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू मेक सम डैशेस, ठीक है। बैक साइड में यू कैन सी दीज डैशेस। तो ये जो डैशेस है ना, ये डैशेस एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मिरर का बैक साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मिरर का बैक साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर द मिरर एज M dash, ठीक है। सो आई एम कॉलिंग दिस मिरर एज MM dash. सो व्हाट इज इट, व्हाट इज मिरर, एक्चुअली रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर पे ज़्यादा अच्छे से तुम्हें दिखाई दे जाता है, मीन्स किसी और सरफेस के मुकाबले अगर हम मिरर पे देखते हैं तो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, राइट, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर हियर, ठीक है। तो वी हैव ड्रॉ अ मिरर, ठीक है। अब देखो मिरर का डेफिनेशन क्या है, अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड मिरर। So basically mirror is a smooth surface, a very smooth surface, or you can say highly polished, ठीक है। smooth की जगह आप highly polished भी word use कर सकते हैं। so mirror is the highly polished surface जिसके ऊपर लाइट क्या करती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन करती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स सारी की सारी लाइट रेज फॉल होती हैं, फॉल होने के बाद स्ट्राइक करने के बाद दे गोज ऑफ into the same media, all right, so that is known as the regular reflection also. Now next is the thing which is the light ray. ऐसी लाइट रे जो इस मिरर पे फॉल होती है, मीन्स वो लाइट रे जो कि इस मिरर पे गिरती है, ठीक है, स्ट्राइक करती है मिरर को। सो लेट मी टेल यू लाइक दिस, ठीक है, ये वाली लाइट रे ऐसे आती है एंड इट फॉल लाइक दिस। आई टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, सी द एरो हियर, जहां की तरफ ये एरो पॉइंट आउट करेगा दैट इज द डायरेक्शन जिसमें लाइट रे मूव कर रही है। सो बेसिकली लाइट रे क्या कर रही है, मूव कर रही है मिरर की तरफ, ठीक है। तो ऐसी लाइट रे जो कि मिरर की तरफ मूव करती है या फिर मिरर को स्ट्राइक करती है, दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अ रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर हम उसका नाम दे देते हैं AB. All right, I am going to write here AB. This AB ray is actually the incident ray. That means this ray is going towards the mirror. All right, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द पॉइंट एट विच द लाइट स्ट्राइक्स द मिरर। तो यू कैन सी हियर दिस पॉइंट B, है ना। तो मतलब लाइट रे जिस पॉइंट पे मिरर को स्ट्राइक करती है दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, मिरर को टच करती है, दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और रिमेंबर ये पॉइंट हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, मिरर पे मिलेगा, राइट, बिकॉज डेफिनेट सी बात है लाइट रे मिरर पे कहाँ टकरा रही है, दैट इज ना। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज गोइंग टू लाई ऑन द मिरर, ठीक है। सो दिस B पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, अब जब लाइट रे आ रही है मिरर से टकरा रही है, सो इट विल बी गोइंग बैक नाउ, ठीक है। सो इट इज गोइंग बैक। So the light ray which goes away from the mirror is known as reflected ray, ठीक है। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं reflected ray। Alright, तो this reflected ray, let's name it BC, ठीक है। तो this reflected ray, this one, alright, and this one. So let me tell you the definition also. See, a ray of light which bounces off the surface of a mirror is called reflected ray. reflected ray जो कि bounce off भी होती है ऐसी light ray, और हम लोग बोल सकते हैं कि reflected ray means that is going away from the mirror, that is known as the reflected ray, ठीक है। So these are the four terms we have studied. Number one, mirror क्या होता है, highly polished surface होती है
जिसके ऊपर से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। थर्ड थिंग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे मिरर को स्ट्राइक करती है, ठीक है। फोर्थ वन, what is that, reflected ray, that means the light which goes away from the mirror, that is known as the reflected ray, ठीक है। नेक्स्ट, ये चार हैं, अब आगे की चीजें हम देखते हैं। सो नॉर्मल, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, दिस नॉर्मल इज एक्चुअली अ इमेजिनरी लाइन which is drawn by us, so it is not a light ray here। लेकिन ये जो लाइन होती है इसकी एक खासियत ये होती है दैट एक्चुअली इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑलवेज, ठीक है। ये जो नॉर्मल लाइन हमने बनाई है ना, बी एन, दिस इज लाइन मेड बाय अस, सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ऑल्सो दिस लाइन इज एक्चुअली गोइंग टू टेल यू दैट इट इज लाइक परपेंडिकुलर टू द यू कैन से मिरर, ऑलवेज इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। तो देखो, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। और ये भी बात हमें ध्यान में रखना है दैट दिस नॉर्मल इज ऑलवेज शुड बी ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहां पर भी लाइट जो है स्ट्राइक करेगी मिरर को, वहीं पर नॉर्मल बनाया जाएगा, ठीक है। अगली देखो, अगला चीज क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो एंगल हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली लुक एट हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द इंसिडेंट रे, है ना, ये जो जा रही है ए बी, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सो दिस वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आई एम गोइंग टू शो इट बाय एंगल आई, स्मॉल आई, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट मीन्स इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आप देखो, लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देंगे, ठीक है। सो मतलब इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है, ठीक है। वी मे डिनोटेड बाय एंगल आई, एंगल आर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टू एंगल्स और पढ़ने वाले हैं एंड दोज आर द ग्लैंस एंगल। तो देखो, अभी हमने क्या बोला कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में तो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे यू कैन से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बचा हुआ एंगल कौन, ये, ठीक है। दिस इज नोन एज द ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या रिमेंबर करनी है तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ये बात ध्यान रखो, ये जो ग्लैंस एंगल है ना, ये हमेशा मिरर के साथ बनता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज द ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो, ये वाली जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ जो एंगल बनाएगी दिस इज कॉल्ड ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर के साथ जो एंगल बनाएगी दिस इज नोन एज ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मिरर के साथ बनने वाले जो एंगल्स होंगे, मिरर के साथ बनने वाले, उनको बस हमने क्या कर दिया है, ग्लैंस आगे लगा दिया, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वहीं तुम देख सकते हो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल के साथ बन रहा है, ठीक है। बना तो रही है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बट नॉर्मल के साथ बन रहा है, ठीक है। बस इसमें यही जो है, इसमें चेंज है, डिफरेंस है ना। यू कैन नोट दिस डेफिनेशन,
ऑलराइट, चलो अभी हम लोग इतने सारे टर्म्स देख चुके हैं, राइट? हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने मिरर पता चल चुका है, हमें इंसिडेंट रे पता चल चुकी है, हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता चल चुका है, हमें रिफ्लेक्टेड रे पता चल चुका है, ठीक है, फिर हमें नॉर्मल पता चल चुका है, फिर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल चुका है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल चुका है, and then glance angle of incidence and then glance angle of reflection. So we know all the terms related to the reflection of light. All right, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. Let's talk about the laws of reflection. So basically ये जो light rays होती हैं ये भी laws को follow करती हैं. So during reflection, ठीक है, जब कभी भी कोई भी reflection होता है light ray का तो वो भी क्या करती हैं, लॉज को फॉलो करती हैं. सो देयर आर टू लॉज जो कि ये लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है. नंबर 1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये सबसे इजीएस्ट लॉ है क्योंकि ये क्या बताता है, ये बताता है भाई कि ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा ही रहेगा, ठीक है. तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि फर्स्ट लॉ है. ऑलराइट, रिमेंबर इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू, चाहे कोई भी सरफेस हो, कोई भी रिफ्लेक्शन हो, दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू, ठीक है. नेक्स्ट देखो, सेकेंड वाला जो इसका लॉ है वो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the reflecting surface always lie in the same plane. That means अगर ये बोर्ड एक प्लेन है then ये जो रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, ये तीनों के तीनों इसी प्लेन में रहेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि भाई इंसिडेंट रे इस तरीके से मिरर पे स्ट्राइक हुई एंड इट कम्स टू यू और इट कम्स इनटू गोज इनटू द बोर्ड, ऐसा नहीं होगा. इट विल ऑलवेज लाई इन दिस प्लेन ओनली, ठीक है. सो दैट इज द मेन टू लॉज जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को या फिर यू कैन से रिफ्लेक्शन फिनोमिना को टोटली फॉलो करते हैं, ठीक है. सो मेक श्योर यू नोट देम डाउन, दोनों को ही नोट करो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को. ऑलराइट, चलो अभी हम लोगों ने लॉज भी देख लिया, ठीक है. व्हाट आर दीज टू लॉज? टू लॉज कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड लॉ कहता है कि भाई रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है. ये हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट, ठीक है. मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ जो कि बहुत 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 नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वो बताती हूँ क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इससे तुम्हें थिंकिंग एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे तुम्हें थिंकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी. जैसे अगर क्या हो ये जो लाइट रे है ये बिल्कुल इस तरीके से मिरर पे फॉल हो, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे मिरर पे फॉल हो, तो क्या होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्या तुम्हें बता पाओगे? बोलो, क्या तुम्हें बात बता पाओगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वक्त राइट नाउ जब ये लाइट रे क्या कर रही है, मिरर पे 90 डिग्री पे फॉल कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, कितना है? मैं बता देती हूँ, दैट इज 0 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, राइट. लेकिन जब ये इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के पाथ पे जा रही है तो इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 हो गया, राइट. तो दैट इज वाई इस वक्त जब कभी भी कोई भी लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर फॉल होती है उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है, ठीक है. और उसके बाद अब हमें ये बात पता है, हमें फर्स्ट लॉ पता है, हमने रूल पढ़ा है ना फर्स्ट वाला, वो क्या कहता है, वो ये रूल कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अगर यहाँ पे 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 0 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, राइट. और सचमुच में यही होता है,
पता है क्या, जब कभी भी लाइट रे किसी भी मिरर को 90 डिग्री पे अगर ऐसे फॉल होती है किसी मिरर पे, तो वो बिल्कुल अपने पाथ पे वापस चली जाती है जहां से आई थी। लिटरली ऐसा ही होता है। ये लाइट रे जो कि इस मिरर पे फॉल हो रही है, इस डैश पे फॉल हो रही है, तुम्हें पता है ये बिल्कुल इसी पाथ पे वापस चली जाएगी टकराने के बाद। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। ये लॉ को भी फॉलो कर रही है, वो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको भी फॉलो कर रही है, और ये फिनोमेना भी होता है। ठीक है, सो देखो, a ray of light striking the surface normally retraces its path। क्या होता है, कोई भी लाइट रे अगर किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे फॉल होती है तो क्या होता है, वो वापस लौट जाती है। retraces its path, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। कंडीशन क्या है कि वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बिल्कुल 90 डिग्री पे फॉल करे। ठीक है, so that is the main thing. You can definitely write down the explanation, बिल्कुल सेम है। when a ray of light strikes a surface normally then angle of incidence is zero, angle of incidence zero हो जाता है, you can write that। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर जो है वो एंगल आई के बराबर होता है, तो यहाँ पे यू कैन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो बन जाएगा, राइट। तो अब देखो, दस एन इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिट्रेसेस इट्स पाथ, हमेशा क्या होगा, दैट वुड रिट्रेसेस इट्स पाथ। उसका रीजन एक्सप्लेनेशन भी अब तुम्हें पता चल चुका है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि जीरो होता है एंड क्योंकि लॉ ये कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जीरो होना चाहिए, और इसी के लिए क्या होता है, द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि देखो, यू कैन सी द सरफेस है, ये कैसी सरफेस है, ये मिरर की सरफेसेस है लेकिन कर्व्ड है, ये प्लेन नहीं है। इसी तरीके से तुम इसको देखो, ये जो सरफेस है ये कैसी है, ये सरफेस भी एक्चुअली क्या है, कर्व्ड है, राइट। अब ये जो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, ये क्या ये भी रूल्स को फॉलो करती है, तो बिल्कुल सही बात है। सचमुच में ये जो दो लॉ हमने पढ़े हैं ये हर तरह की सरफेस जो है फॉलो करती है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ प्लेन सरफेस ही फॉलो करेगी इन रूल्स को, या फिर सिर्फ स्मूथ सरफेसेस ही करेंगी, ऐसा नहीं होता है। हर एक सरफेस इन लॉज को फॉलो करती है, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो रफ हो, चाहे वो स्मूथ हो। ठीक है, laws of reflection are also obeyed when light is reflected from the spherical or curved surfaces. All right, this is the second fact that I wanted to tell you. अब हम चलते हैं आगे and let's talk about the types of reflection. तुम्हें क्या लगता है, ये देखो, ये है एक रूम की फोटो, ठीक है, एंड ये है फोटो की फोटो, यानी कि इमेज जो है, वेस की इमेज जो मिरर के अंदर बन रही है उसका फोटो। ठीक है, सो यू कैन सी हियर, तुम्हें दो तरीके के रिफ्लेक्शन नजर आ रहे होंगे कि, और तुम्हें तो लग रहा होगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें इमेज दिख रही है, तो भाई ये तो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये तो है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई इमेज थोड़ी है, यहाँ पे कोई मिरर थोड़ी लग गई, तो बस रूम का फोटो है। बट एक्चुअली लेट मी टेल you that this is also reflection, right? This is also reflection. There are two types of reflection. दो तरीके के reflection होते हैं and let me tell you what are those. एक होता है ये वाला reflection जिसे हम बोलते हैं diffused या फिर irregular. ठीक है, सेकेंड वाला जो है एक्चुअली में, तो वो क्या होता है, इट कैन बी लाइक रेगुलर। ठीक है, तो तुम जो मिरर से रिफ्लेक्शन देख रहे हो, मिरर के अंदर प्लेन सरफेसेस के अंदर जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो, दैट इज द रेगुलर वन। ठीक है, लेकिन तुम इन सब चीजों को भी सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पा रहे हो। अगर तुम अपने रूम में प्रेजेंट सोफा, टेबल, बेड, अलमीरा, ना, पेन, पेंसिल, कर्टेन्स, वॉल हैंगिंग्स, फैन वगैरह सब देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, बिकॉज लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इज कमिंग इनटू योर आई। तुम्हें क्या लगता है, लाइट सोर्स जो तुम्हारे रूम में है, लेट्स से तुम्हारे रूम में ट्यूब लाइट है, ठीक है, तो वो जो ट्यूब लाइट है वो सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से लाइट आएगी, और बाकी तुम्हारे रूम में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है ना, उन सभी चीजों पे फॉल होगी। फॉल होने के बाद जो लाइट रे फॉल हुई, स्ट्राइक करने के बाद इट गोज इनटू द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन हैपेंस एंड दैट लाइट गोज इनटू योर आईज, देन ओनली यू आर एबल टू सी द थिंग्स।
ठीक है, अपने आसपास की चीजों को तुम तभी देख पाते हो जब कभी ये रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, एंड दैट रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली द इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन जो प्लेन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन होते हैं दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन एक्चुअली हैपन किसकी सरफेसेस पे होता है? ऐसी सरफेसेस पे होता है जो बहुत स्मूथ हैं, जो बिल्कुल प्लेन है, जैसे कि प्लेन मिरर, वो उसका सरफेस क्या है? बहुत स्मूथ है, राइट, इट इज सो मच यू कैन से हाईली पॉलिश सरफेस है, राइट। तो ऐसे सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन अगर होगा तो वो किस तरीके से होगा? लेट मी टेल यू, सारी की सारी पैरेलल रेज विल फॉल ऑन दैट सरफेस एंड दे विल लाइक by following the laws of reflection they are like goes away, है ना, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। so such type of reflection is known as the you can say the regular reflection, जहाँ पे parallel rays of light fall होती हैं और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चले जाती हैं, ठीक है। तो that reflection is known as the regular reflection। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये जनरली प्लेन सरफेसेस पर ही होता है, ठीक है। सो सी the phenomenon due to which a parallel beam of light traveling through a certain medium on striking some smooth polished surface bounces off from it as parallel beam। वो parallel beam ही बनता है रिफ्लेक्शन के बाद भी, ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, पैरेलल फॉल होती है, पैरेलल ही चले जाती है, ठीक है। This type of things happen in some other fixed direction is called the regular reflection, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब क्या होता है? पैरेलल लाइट रेज फॉल होती हैं और रिफ्लेक्टेड भी क्या होती हैं? पैरेलली होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स लाइक लुकिंग ग्लास, ठीक है, और स्मूथ सरफेसेस, और यू कैन से द टॉप लेयर ऑफ द ऑयल ऑल्सो, राइट, यू कैन डेफिनेटली सी दैट। और जो हमने वाटर के फर्स्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था ना, एक फोटो देखा था जिसमें माउंटेन्स का इमेजेस बन रहे थे, राइट, वो जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो वेन एवर यू सी दैट टाइप ऑफ थिंग यू आर गोइंग टू गेट द रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यू कैन डेफिनेटली से दैट कि ये जो होता है बहुत ही ज्यादा यू कैन से स्ट्रॉन्ग ग्लेयर जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है, क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल तुम्हारी आंखों में आती हैं, राइट। तो इट कैन बी टेकन एज अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर, तुम्हें चमकता सा दिखाई देगा वेन एवर सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन्स, right, so that is known as the regular reflection। now let me tell you the irregular and the diffused one। ये देखो you can see here the surface is not smooth because हमें पता है भाई सोफे की सरफेस भी जो है स्मूथ नहीं होती है, राइट, यू कैन सी अलमीरा, बेड, टेबल उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है जितना मिरर का सरफेस स्मूथ होता है, राइट। तो यू कैन सी हियर उनके जो सरफेस होगा उसमें कुछ ना कुछ रफनेस तो होगा, राइट। उस रफनेस की वजह से देखो क्या होता है, सारी की सारी जो पैरेलल लाइट रेज है वो फॉल हो रही हैं, बट रिफ्लेक्शन को के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए दे आर लाइक गोइंग इन अनदर डायरेक्शंस, ठीक है। जो लाइट रेज पैरेलल फॉल हो रही थी वो अब अलग अलग डायरेक्शंस में हो रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और पता है इसी वजह से यू कैन सी ऑल द थिंग्स बिकॉज रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्लेयर नहीं मिल रहा है हमको, राइट। दैट इज द मेन थिंग हियर कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अलग अलग डायरेक्शंस में सारी लाइट रेज चली गई हैं, तो तुम्हारी आंखों में स्ट्रॉन्ग ग्लेयर नहीं मिलेगा, राइट। ऊपर से तुम्हें ये यू कैन सी हियर दिस इज ड्यू टू द रफ सरफेसेस, राइट। तो ये जो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होते हैं ये रफ सरफेसेस की वजह से होते हैं, ऑलराइट। तो यू कैन सी द फिनोमेना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस पॉसिबल डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सारी लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग सम रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो फॉल तो होती हैं सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज बट रिफ्लेक्ट कैसी होती हैं? अलग अलग डायरेक्शंस में होती हैं, तो दैट इज टेकन एज द रिफ्यूज्ड एंड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तुम इस पॉइंट को लिखो।
ऑलराइट, तो अब हमें टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता है। तो देखो, तुम अपने जो मॉर्निंग में हम लोग लुकिंग मिरर में देखते हैं, ठीक है, दैट मिरर में जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है दैट इज रेगुलर, ठीक है, लेकिन तुम जिन रिफ्लेक्शन की वजह से तुम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हो दैट इज द इरेगुलर डिफ्रैक्शन, ठीक है, इरेगुलर ही तो होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही तो होगा, राइट। तो देखो, ये जो रिफ्लेक्शन होता है एक्चुअली में ये सारी की सारी यू कैन सी जितनी भी लाइट रेज इन सब चीज़ों पे फॉल हो रही है, दीज कुशंस, ठीक है, ये पिक्चर वॉल और कर्टेन, सोफा, कारपेट, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ों पे लाइट फॉल होती है वो अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। उसी की वजह से हम इन चीज़ों को तो देख पाते हैं क्योंकि कुछ लाइट रेज हमारी आंखों में भी जाती है, जो लाइट रेज हमारी आंखों में जाती हैं वी कैन सी दैट, ठीक है, एंड दैट इज द मेन थिंग जो कि हमें एक्चुअली में ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ये स्ट्रॉन्ग ग्लेयर पैदा करने की जगह पे सिर्फ चीज़ों को विजिबल बनाता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन यू आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स अराउंड यू, ठीक है, ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम आगे चले, देखो सबसे पहली बात कि भाई ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है मैंने तुम्हें बताया था कि चाहे कोई भी सरफेस प्लेन हो, कर्व्ड हो, ठीक है, चाहे कोई भी सरफेस यू कैन से रफ हो, ठीक है, तो कोई भी ऐसी सरफेसेस अगर होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो नहीं होगा। लाइट रेज हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है चाहे कोई भी सरफेसेस हो, ठीक है, इट कैन बी प्लेन, इट कैन बी कर्व्ड, इट कैन बी रफ, ठीक है, तो इट कैन बी एनी सरफेस। चलो अभी हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज एन इमेज हियर, क्या होती है इमेज एक्चुअली में। सो लेट मी टेल यू कि जो ऑप्टिकल इमेज होती है, ऑप्टिकल इमेज मींस द इमेज मेड बाय द लाइट, ऑप्टिकल इमेज, ठीक है। तो द ऑप्टिकल इमेज इज अ पॉइंट वेयर रे ऑफ लाइट कन्वर्ज एक्चुअली और अपीयर टू डाइवर्ज। सो बेसिकली लाइट रेज जहाँ पे एक्चुअली मीट करती हैं, ठीक है, कन्वर्ज करती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि भाई एक पॉइंट से आ रही है और डाइवर्ज हो रही है, मतलब एक पॉइंट से चारों तरफ फैल रही है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा होता है देन वी से दैट पॉइंट एज द ऑप्टिकल इमेज। एज यू कैन सी हियर, ये जो वेस तुम देख पा रहे हो, तुम ये ऑब्जेक्ट तो देख ही पा रहे हो, राइट, ये असली वेस है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बट यू कैन सी हियर कि ये जो इमेज तुम्हें दिखाई दे रही है तो तुम्हें क्या लगता होगा, तुम्हें क्या लगता है कि भाई मिरर के अंदर से ये जो वेस है उससे तुम्हें लाइट जो है आ रही है, उससे वहाँ तुम्हारी आंखों तक लाइट पहुँच रही है, दैट इज द मेन फीचर है, ठीक है। इमेज का मतलब यही है, इमेज का मतलब यही है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई मिरर के अंदर से लाइट रे आ रही है और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली जहाँ से भी हमारी आंखों में लाइट रे जाएगी ना हमें वो चीज़ वहीं नज़र आएगी, ठीक है। अगर लेट्स से तुम्हारी आंखों में लाइट जा रही है, ठीक है, लेट्स से तुम्हारे पेन पे लाइट रेज फॉल होंगी, पेन से टकराने के बाद तुम्हारी आंखों में जाएंगी, तब जाके तुम उस पेन को देख पाओगे, ठीक है। सो इफ यू आर एबल टू सी द इमेज इनसाइड द मिरर, तो इसका मतलब क्या होगा कि मिरर के अंदर से भी लाइट रे तुम्हारी आंखों में आनी चाहिए, बट एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं, मिरर के अंदर तो कुछ नहीं होता, एक्चुअली मिरर की सरफेसेस से ही होता है। तो बेसिकली वी आर एबल टू सी द इमेज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलराइट। अब देखो, द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज एन असेंबली ऑफ इमेज पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हर एक पॉइंट का इमेज बनता है तब जाके तुम्हें पूरी इमेज दिखाई देती है। जैसे कि तुम ये देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा वेस तुम्हें दिखाई दे रहा है, राइट, बट एक्चुअली में इस वेस की जो इमेज है, हर एक पॉइंट की अलग अलग इमेज बनी है, उन सबको कंबाइन करके यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इमेज, ठीक है। नाउ सी types of images, now there are two types of images, real one and the virtual one। तो हमारा जो लुकिंग मिरर होता है, ठीक है, लुकिंग मिरर के अंदर जो इमेज तुम्हें दिखाई देती है दैट इमेज इज द वर्चुअल वन, यू कैन नॉट टच दैट इमेज, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है कि लाइट रेज मिरर के अंदर से ही आ रही है, तभी तो तुम देख पा रहे हो, मतलब समथिंग इज इनसाइड द मिरर, राइट। तो लाइट रेज मिरर से आती हुई तुम्हें लगती हैं, तो दे सीम टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वर्चुअल इमेज। दिस टाइप ऑफ इमेज, द वर्चुअल इमेज, जो कि हम लोग लुकिंग ग्लास में बनते हैं, देखते हैं, दैट टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। वहीं पर अगर हम रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज में क्या होता है, ये रियल इमेज एक्चुअली में मिरर के बाहर बनती है, ठीक है, और ये जो मिरर के बाहर बनती है तो हम उसको किसी स्क्रीन पे ले सकते हैं। अगर हम उस जगह पर जहाँ पे इमेज बन रही है उस जगह पे कोई पेपर रख दे तो वी कैन सी दैट इमेज ऑन दैट पेपर, सो वी कैन गेट दैट इमेज ऑन अ स्क्रीन।
राइट. तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन रियल इमेज. ऑल्सो यहाँ पे एक्चुअली में यू कैन से कि लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट टू टाइप ऑफ इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल. ठीक है, फटाफट से इसे नोट करो. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन. हम इनके बीच के डिफरेंसेस देख लेते हैं. वैसे तो डिफरेंसेस हमको पता ही चल गए होंगे. देखो रियल इमेज में क्या है. रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मिरर के आगे जैसे लाइट रे आ रही है मिरर से टकरा के, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देन वी आर गोइंग टू गेट द रियल इमेज. वहीं पे जो वर्चुअल इमेज होती है, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर. ऐसा लगता है मिरर के अंदर से लाइट रे हमको आ रही है, बिकॉज वी आर एबल टू सी द थिंग्स इनसाइड द मिरर. हमें उसमें उनका इमेज दिखता है ना. मतलब जो इमेजिन द होल रूम इनसाइड द मिरर. ठीक है, तो मतलब मिरर के अंदर जो तुम्हें अंदर का रूम दिख रहा है वहां से भी तो लाइट तुम्हारी आंखों में आ रही है, तभी तो तुम उसको देख पा रहे हो. राइट, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर से लाइट रे आ रही है, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा होता है. दैट्स व्हाई दैट इमेज इज नोन एज द वर्चुअल वन. ठीक है. सेकेंड देखो, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन बिकॉज इट इज आउटसाइड द मिरर. A virtual image cannot be obtained on a screen because it is inside the mirror. ठीक है, so we are going to get that images only in the mirror. ठीक है. A real image is inverted with respect to the object. ये सबसे अच्छा पॉइंट है ये पहचानने का, that any image is real or you can say inverted. देखो रियल इमेजेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड होने का मतलब भाई, इन्वर्टेड होने का मतलब ये है कि अगर तुम सीधे खड़े हो, दैट मीन्स तुम्हारा सिर ऊपर है, पाँव नीचे हैं, तब तुम्हारी इमेज का सिर नीचे होगा और पाँव ऊपर होगा. ठीक है, दैट टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज द रियल इमेज. ठीक है. लेकिन वर्चुअल वन जो होती है वो इरेक्ट होती है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, क्योंकि देखो सुबह सुबह हम जब अपने लुकिंग ग्लास में देख रहे होते हैं, सो डेफिनेटली बात है अगर हम सीधे खड़े हैं तो सिर ऊपर पाँव नीचे हमारा है. इमेज का भी होता है सिर ऊपर पाँव नीचे, तो दैट इज द इरेक्ट इमेज, दैट मीन्स अपराइट इमेज. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट मिलेंगे आपको. रियल इमेज हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, इन्वर्टेड मिलेंगे. ठीक है. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द रियल विद द वर्चुअल वन. ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इन्हें. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन. मूव करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं मिरर को. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ मिरर हियर. एक्चुअली you can see here mirror is a highly polished surface which is quite smooth and capable of reflecting a good fraction of light from its surface. So basically जो मिरर होता है बहुत 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 स्मूथ होता है, हाईली पॉलिश सरफेस होती है, लेकिन उसकी ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या करे, उसके ऊपर गिरने वाली जितनी भी लाइट रेज हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, यू कैन से गुड फ्रैक्शन, तो दैट गोज अवे फ्रॉम द मिरर. दैट मीन्स दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर. तो मिरर में ये कैपेबिलिटी है दैट इट कैन रिफ्लेक्ट द लाइट. ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द लाइट यू कैन से. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिरर. तो देखो हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ मिरर देखे हैं, तुमने कैसे देखे हैं, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ. टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहला तो आ रहा है प्लेन मिरर. ठीक है, सो दिस इज लाइक अ प्लेन मिरर. ठीक है, दूसरा जो है दैट इज द स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड मिरर भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज डेफिनेटली कर्व्ड. ठीक है, लेकिन ये जो स्फेरिकल मिरर है ये खुद और दो टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, ये जो है वो अलग से दो टाइप्स में डिवाइडेड है. सो नंबर वन इज द कनकेव मिरर and the next one is the convex mirror. ठीक है, इन सभी मिरर्स को हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो तुम चिंता तो बिल्कुल ही मत करो, लेकिन तुम इतना ज़रूर समझो कि देखो टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहले क्या आ रहा है, प्लेन मिरर आ रहा है एंड स्फेरिकल मिरर. ये प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा होता है,
स्फेरिकल मिरर हल्का सा कर्व्ड होता है, ठीक है। ये है, अभी दो तरीके से कर्व्ड हो सकता है, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू गेट टू टाइप्स ऑफ spherical mirrors. Number one is the concave, number second is the convex. We are going to discuss the shape also, ठीक है। Let me tell you how. ये प्लेन मिरर जो होता है, जैसे प्लेन हो गया, एक स्ट्रेट लाइन है और इसका बैक साइड मैंने पेंट करके तुम्हें बता दिया। कनकेव में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके के होता है, इसका बैक साइड कुछ ऐसा होता है, मीन्स द लाइट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम दीज सरफेसेस, ठीक है। कर्व्ड होता है, इनवर्ड्स कर्व्ड होता है, ठीक है। वहीं पे कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इस तरीके से बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है, ठीक है। सो द मिरर विच इज, जिसका शाइनी सरफेस बल्ज आउट होता है फ्रॉम द मिडल यू कैन से, तो दैट इज द कन्वेक्स। और जिसका शाइनी सरफेस कर्व्ड होता है, इनवर्ड कर्व्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ दीज आउट। ऑलराइट, चलो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स सी हाउ इमेज फॉर्मेशन ऑन अ प्लेन मिरर हैपेंस, ठीक है। तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लेन मिरर के सामने इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो एक्स वाई यू कैन सी हियर, दिस इज द मिरर, ठीक है। एंड और ये जो ग्रे साइड है ना, दैट इज द बैक साइड। सो लेट मी पॉइंट इट आउट, ठीक है। ये है इसका बैक साइड, ठीक है। I have made the back side by making dashes here. You can see the shiny surface also. Now देखो ये ऑब्जेक्ट O है ना, वो मिरर के बिल्कुल सामने रख दिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमने प्लेस कर दी है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बनाना है, इमेजेस बनाना है। इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें O से कुछ लाइट रेज को मिरर पे भेजना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज को मिरर पे भेजेंगे, फॉल करवाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो लाइट रे O से ऑब्जेक्ट से फॉल होती है मिरर पे, कौन सी, दिस वन OA। तो देखो दिस लाइट रे इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना। तो देखो O से लाइट रे जाएगी A पर जाएगी, बट बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, एंड आई टोल्ड यू परपेंडिकुलर में क्या होता है, लाइट वापस चली जाती है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, सो इट विल गोज बैक टूवर्ड्स O, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, रे OA, ठीक है। उसको हमने इंसिडेंट करवाया है एंड राइट एंगल पे करवाया है, जिसकी वजह से लाइट रे कैसे जाएगी, A से O की तरफ चले जाएगी, बिकॉज इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। सेकेंड लाइट रे जो हमने भेजी है O से मिरर की तरफ, तो वो देखो कौन सी है, O से लेके B, ठीक है। हमने एक लाइट रे भेजी है O से B की तरफ, ठीक है। और B पॉइंट पे वो क्या करेगी, वो लाइट रे मिरर को स्ट्राइक करेगी। अब क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, राइट, फॉलो भी होने चाहिए, सो इट विल गोज लाइक टूवर्ड्स C, ठीक है। B से लाइट रे C की तरफ चले जाएगी, ठीक है। सो दे विल बी लाइक फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमें इमेज कैसे मिलेगी, इमेज कैसे मिलेगी, ये चीज़ हमें देखनी है। तो तुम एक बात, मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइट रे जो जा रही है BC, ये वाली लाइट रे जो जा रही है, और ये जो दूसरी लाइट रे ऐसे जा रही थी OA, will they ever meet in front of the mirror, will they ever meet, यहाँ से इधर की तरफ, will they ever meet, they are like going away from each other, so they are not going to meet any time soon in front of the mirror, right? So that's why, क्योंकि वो आगे नहीं मिल रही है, so let's extend them backwards, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे BC बाहर जा रही थी, उसको हमने क्या किया, पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड किया। इसी तरीके से ये जो लाइट रे था, ये जो AO जा रहा था, उसी को हमने पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड किया, एंड व्हेन वी एक्सटेंड दोज वी आर गोइंग टू गेट दिस आई हियर एट पॉइंट। तो देखो हमें इमेज अगर आई की दिखाई देगी ना, तो हमें लगेगा आई से ही लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट इमेज, ठीक है। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन डेफिनेटली से दैट कि ये जो डिस्टेंस है ना OA, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू IA, मतलब सेम डिस्टेंसेस होने चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, दोनों का डिस्टेंसेस इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट। लेकिन ये तो सिर्फ एक पॉइंट की बात थी, तो मतलब हम सिर्फ एक पॉइंट का इमेज देख रहे थे, जो कि हमने आई में देख लिया है, राइट। इसके अलावा पूरी बॉडी का इमेज कैसे बनता है, लेट्स लुक।
इस तरीके से बनता है। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट रेज जा रही हैं, ठीक है, ये है मिरर, ठीक है, सो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। यहाँ से भी लाइट रेज जा रही है, इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट लाइक दिस। बट रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इस आंख को वो जो इमेज है ना वो कुछ यहाँ नजर आएगी इनसाइड द मिरर, ठीक है। तो मेन क्या काम हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन का काम हो रहा है। जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको तुम क्या कर सकते हो, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आंख को लगेगा इमेज इज लाइक समवेयर हियर इनसाइड द मिरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको तो लगेगा लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, उसको तो यहाँ का तो पता नहीं चलेगा ना, यहाँ पे तो उसे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, राइट। दैट इज द मेन थिंग। हम जहाँ से भी लाइट हमारी आंखों में जाती है ना, हमें वही वहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर मिरर के अंदर से लाइट रे, ऐसा लगेगा कि भाई मिरर के अंदर से लाइट रे आ रही है, तो हमको लगेगा कि मिरर के अंदर ही इमेज बन रही है। दैट्स वाई हमें सारी जो इमेजेस हैं लुकिंग मिरर में, प्लेन मिरर में जो इमेजेस मिलती है वो हमें लगता ऐसा लगता है दैट इज इनसाइड द मिरर बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट। सो दैट इज, नोट दिस डाउन, यू कैन मेक अ डायग्राम ऑफ दिस। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम सारी की सारी इमेजेस बना सकते हैं, राइट। वी कैन मेक द इमेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं तुम्हें बताना चाहूँगी वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि हमें पता है सीधी है ना, तो सीधी का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल हुआ, ठीक है। सो दैट मीन्स जो इमेज प्लेन मिरर में हमें दिखाई देती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। सेकेंड आप देख सकते हो वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी होती है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट साथ साथ रहते हैं हमेशा, ऑलराइट। थर्ड देखो, इमेज का जो साइज है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट जितनी भी बड़ी होगी उतना ही बड़ी इमेज भी होगी, बिल्कुल सेम साइज, ठीक है, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। और तुम खुद से भी लुकिंग मिरर में देख के पता कर सकते हो कि भाई तुम जितने साइज के हो तुम्हारी इमेज भी उतने ही साइज की होगी, ठीक है, सेम साइज। अगला देखो, सेम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर होगी। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ, लेट्स से दिस इज द मिरर, ठीक है, ये है मिरर और ये प्लेन मिरर है, ठीक है। ये जो गलती से लाइन ऐसी हो गई, तो ये देखो लेट्स से ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी, ठीक है। तुम्हें इमेज यहीं मिलेगी 5 सेंटीमीटर पीछे फ्रॉम द मिरर। अब यू कैन डेफिनेटली गेट दैट कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 5 + 5 10, राइट। नाउ यू कैन गेट द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये तुम्हें कैसे पता चला, बिकॉज यू नो द फीचर, द कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें पता था कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो जितनी दूर होती है मिरर से उसकी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर बनती है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। अगला देखो, लेटरली इन्वर्टेड। तुमने कभी चीज ऑब्जर्व की है कि भाई अगर तुम मिरर के सामने राइट हैंड उठाओगे तो तुम्हारी जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड उठाती है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दिस इज लाइक लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये जो लेटरली इन्वर्टेड होता है इसका मतलब लाइक किसी ने उसको पलट दिया है, ठीक है, पर्सन को पलट दिया है। एज यू कैन सी, यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये पर्सन है, ठीक है, एंड दिस इज द इमेज है। तो इस पर्सन ने अपना क्या किया हुआ है, लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाया हुआ है ना, लेकिन इमेज का क्या लग रहा है, राइट हैंड आगे बढ़ा हुआ लग रहा है। रीजन क्यों, क्योंकि सेम डिस्टेंसेस होता है ना, वही देखो जैसे इस पर्सन ने क्या किया हुआ है, अपने हाथ को आगे बढ़ाया हुआ है, तो मिरर के पास कौन है, ये फिंगर टिप्स, राइट, दीज फिंगर टिप्स आर नियरर टू द मिरर। तो इसका मतलब इन फिंगर टिप्स की जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के पास होनी चाहिए, इसीलिए वो पहले बन जाती है। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ लेटरली इन्वर्टेड थिंग, बिकॉज डिस्टेंसेस हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सो दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोइंग टू गेट यू ऑल द इमेजेस यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। मिरर से कैलकुलेट कर सकते हो इमेज का डिस्टेंस एंड ऑल द नेक्स्ट थिंग यू कैन गेट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये क्या क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट,
सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड। ये 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्लेन मिरर के फॉर्मेशन जो इमेज का होता है उसमें सेम रहते हैं, ठीक है। दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट इमेज। ऑलराइट, सो नोट दिस डाउन। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पर जो है हम अपना लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम स्पीड के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर कोई पर्सन मिरर से 2 मीटर पर सेकेंड से भागता हुआ मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज को कितना जो है पता चलेगा कि भाई कितने स्पीड से वो आ रहा है। ये जो पता चलने वाली बातें हैं, वी विल बी टॉकिंग दैट अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून and thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also, let's meet in the next class. Thank you so much.